Good morning, students. Our today's chapter is On the Face of It, chapter number 6 by Suzanne Hill. In this chapter, mainly we have two characters. First one is Mr. Lamb, and another one is Derry. Both these characters have some physical impairment in their body. And let's read these two lines first. The play deals with the idea that appearances are generally deceptive. On the face of it, everything seems to be alright, but actually it's not so. The sense of alienation gives more pain than the physical impairment. So let's try to understand these lines first. Actually, in this chapter, our both the characters have some physical impairments, means that they are not physically normal, due to which always people give them over concern and over pity. That's why they do not feel normal in the society. So this in this play, the idea of the play is that appearances are generally deceptive. It means कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जो हम आँखों से देखते हैं, वो केवल धोखा भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि जो हमें आँखों से दिख रहा है वो सही हो. एंड ऑन द फेस ऑफ इट एवरीथिंग सीम्स टू बी ऑल राइट. ठीक है, हमें लगता है चीज़ें सभी सही हैं, बट एक्चुअली वैसा नहीं होता है. और अनदर जो थीम है डेट इज़ अ सेंस ऑफ एलिनेशन, जो अकेलापन है, क्योंकि व्हेन द पीपल आर नॉट ट्रीटेड एज अ नॉर्मल, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है लोगों की तरफ से कि ये अगर लेग नहीं है या आर्म नहीं है तो उनको एक पिटी की तरह देखा जाता है, उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है. तो वो जो वो सेंस ऑफ एलिनेशन फील करते हैं डैट इज़ मोर पेनफुल दैन द फिजिकल इम्पेयरमेंट. फिजिकली अगर उनमें कोई कमी है उससे ज़्यादा वो इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि ड्यू टू द स्पेशल ट्रीटमेंट बाय द पीपल. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कैरेक्टर Mr. Lamb. He is an old handicapped person. He has lost one leg in the war, so he walks with a limp with his tin leg. ठीक है. Children call him Lammy Lamb, and people generally avoid him. Even Dairy Mother has a negative opinion about him, and he longs for human company and suffers from the pain of loneliness. ठीक है, ये हमारे कैरेक्टर है मिस्टर लैम. So the physical impairment he have that he has lost one leg in the war, and due to which he suffers from the pain of loneliness. ओके, स्टार्टिंग जब हम प्ले पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मिस्टर लैम्प का जो करेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सा है, पॉजिटिव आउटलुक है. लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डैट ही ऑल्सो फील्स अ सेंस ऑफ एलिनेशन हेयर. नेक्स्ट करेक्टर वी हैव, our next character is Derek, a young boy of 14. He has an ugly half-burnt face due to the acid burns. Accidentally, his face is burnt due to the acid, and he suffers from the inferiority complex and remains conscious of his handicap. He feels totally hopeless and lost. People stare at him, avoid him, so he has begun to hate them. Even his parents show overt concern and pity, and he does not like the members of his family because they keep on pitying him. ठीक है, हमेशा उसको दया की भावना से देखना या दया दिखाते रहना जो उसे अच्छा नहीं लगता था. इट इज़ ओनली मिस्टर लैम्ब, अ लेम पर्सन विद अ टिन लैग, हु गिव्स हिम होप एंड कॉन्फिडेंस. Jerry is drawn towards Mr. Lamb because he shows no pity or sympathy, and he learns from him as to how to face the world. ठीक है, तो हम इस प्ले में देखेंगे कि कैसे जो मिस्टर लैम्ब है उन्होंने इसके अंदर एक सेंस ऑफ होप जगाई है. ठीक है जी. Now let's focus on the theme first. So the theme of the chapter is, जो हमने पहले ही पढ़ा है, that appearances are generally deceptive. ठीक है, और हम देखेंगे प्ले में भी कि जो लैम्ब है मिस्टर लैम्ब बहुत ही हैप्पी और कंटेंटेड दिखते हैं हमें इन द फर्स्ट फेज ऑफ आर प्ले. बट एज वी प्रोसीड फर्दर we will see that he also feels sense of alienation. He also longs for the relationship, for the company. Okay, so first the first theme is that is the appearances are deceptive. Another theme of this chapter is that physical impairment is always painful, and
it make one pessimist and even cynical in the face of the neglect by others. Okay, cynical means when someone behave rudely, and pessimist means sorrowful attitude. So in the face of neglect, so its pain is often less than the sense of alienation felt by a disabled person. Okay, जो हमने पहले पढ़ा है, that sense of alienation is more effective than the physical impairment. Then a person with a disability wants other to treat him normally without showing any overt concern, and he wants real encouragement to live his life meaningfully. Both Lamb and Jerry suffer a sense of alienation. Okay, this is our theme of the chapter. Yes, and this is a Suzanne Hill, our poet. Okay, let's start our chapter now. This is the first scene. The first scene is when Derry enters into the garden of Mr. Lamb secretly, and what are the dialogues between them that we will see. So let's start our first line, that Mr. Lamb garden का जो एटमॉस्फेयर था वो बताया गया पहले, that there is occasional sound of bird songs there and tree leaves rustling. Tree leaf rustling मतलब जब हवा चलती है तो जो पेड़ों के पत्तों की जो आवाज़ आती है, कुछ सूखे पत्तों की नीचे गिरे होते हैं पत्ते, उनकी जो आवाज़ें आती हैं उसके लिए बोला गया ट्री लीफ रसलिंग. Darry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. Tentatively means secretly. And he pauses, then walks on again. तो वो धीरे धीरे छुप के जा रहा था, कभी रुक जाता था, कभी चलता था. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at the hand and Darry is startled. ठीक है, तो फर्स्ट सीन में फिर छुप रहा था बुशेस के पास, जैसे उसकी आवाज़ सुनती है मिस्टर लैम्ब की तो वहाँ पे छुपने की कोशिश करता है. ठीक है, तो फर्स्ट डायलॉग है मिस्टर लैम्ब का. माइंड द एप्पल्स. डैरी. व्हाट? Who's that? Who's there? Mr. Lamb. Lamb's my name. Mind the apples. Crab apples. Those are windfalls in the long grass. You could trip. Derry. I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. ठीक है, तो उसकी एंट्री होती है तो मिस्टर लैम्ब उसे पूछते हैं एकदम से, तो वो डर जाता है और वो डैरी का क्वेश्चन होता है हु इज़ देयर, कौन है यहाँ पे, तो मिस्टर लैम्ब बताते हैं दैट लैम्ब्स माय नेम, और यहाँ पे क्रैब एप्पल का गार्डन है तुम आके ले सकते हो. देन डैरी कहता है दैट आई थॉट इट वॉज एन एम्प्टी प्लेस, और मैं यहाँ पे जैसे लगा कि यहाँ पे कोई नहीं है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्रैब एप्पल्स क्या होते हैं. दीज आर द टाइप ऑफ द एप्पल्स नोन एज द क्रैब एप्पल्स विच आर गोल्डन इन कलर. एंड हेयर इज़ अ स्क्रीन ऑफ बुशेस मीन्स जब झाड़ियाँ वो बहुत ज़्यादा पर्सन छुप सकें उनके लिए हमने स्क्रीन ऑफ बुशेस किया है यूज़. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे. मिस्टर लैम्ब देन सेड दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट. ठीक है, तो मिस्टर लैम्ब से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम आगे हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. डैरी. आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी स्पेस, एन एम्प्टी हाउस. मिस्टर लैम्ब. सो इट इज़, since I am out here in the garden, so it's empty until I go back inside. In the meantime, I am out here and likely to stop a day like this beautiful day, not a day to be indoors. तो बहुत ही ह्यूमरस वे में से वो आंसर देते हैं कि हाँ ये घर तो खाली है क्योंकि मैं बाहर बैठा हूँ और तुम आ सकते हो. नाउ डैरी जो है वो पैनिक फील करता है, डरते हुए कहता है आई हैव गॉट टू गो. मिस्टर लैम्ब कहते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, I don't mind who comes into the garden. The gates always open. Only you climb the garden wall. ठीक है, उसने बोला कि गेट्स खुले हैं, मैंने कभी अपने गेट बंद नहीं किए हैं गार्डन के, और तुम जो हो वो वॉल को ऐसे क्लाइंब करके आ रहे हो. डैरी एंग्रली. यू आर वॉचिंग मी. मिस्टर लैम्ब. आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन. ऑल वेलकम. यू आर वेलकम. आई सिट हियर. आई लाइक सिटिंग. डैरी. आई वुड नॉट कम टू स्टील एनी थिंग. ठीक है, डैडी से कहते हैं कि मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आया था. नो द यंग लैड स्टील स्क्रम्प द एप्पल, यू आर नॉट सो यंग. तो वो मिस्टर लैम्ब से फिर से बोलते हैं कि हाँ ये तुम यहाँ पे एप्पल स्टील करने नहीं आए थे, मैं जानता हूँ. यू आर नॉट सो यंग. यंग लैड आते हैं, लैड्स मतलब होता है बॉयज़. डैरी. आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन. मिस्टर लैम्ब. सो यू डिड. हेयर वी आर देन. डैरी. यू डोंट नो हु आई एम.
ठीक है। तो मिस्टर डेरी से बोलता है कि मैं बस गार्डन में आया था। तो उसने बोला कि हाँ तुम आ चुके हो, सो यू डिड, हेयर वी आर, हम यहाँ पे हैं अभी दोनों। तो डेरी से बोलते हैं दैट यू डोंट नो हु आई एम, ठीक है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट। नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, उसने कहा कि हाँ तुमने, मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें। डेरी यस, यस कह के वो पॉज लेता है और मिस्टर लैम जो है यहाँ पे वो टॉपिक चेंज करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, दे आर राइप फॉर इट, आई मेक जेली, इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर September, look at them orange and golden, that's a magic I often say, but it's it's best picked and made into the jelly, you could give me a hand। ठीक है, तो मिस्टर लैम जो है वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेरी यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा पैनिक होके या पर्सनल होके अपनी प्रॉब्लम बताने लगा था। तो डेरी जो मिस्टर लैम उन्होंने टॉपिक बदला और वो जेली बनाने के बारे में बातें करने लगे, जो एप्पल है उनको जेली बननी चाहिए। तो डेरी इतने में क्या बोलता है, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, पीपल ऑलवेज डू डैट, वाई डोंट यू आस्क मी, why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't there? In case I see you looking at mine and get upset, I will tell you don't ask me because you're afraid to। ठीक है, तो अभी टैरी को समझ में आ जाती है बातें और वो कहता है कि तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो तुम, और लोग मुझसे ये ऐसी बातें करते हैं, मुझसे पूछते हैं, फिर प्रटेंड करते हैं कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो कहता है लेकिन तुम मुझसे मत पूछना क्योंकि तुम डर जाओगे, ठीक है, यू आर अफ्रेड टू। मिस्टर लैम कहते हैं यू वांट मी टू आस्क, से सो देन। तो यहाँ पे मिस्टर लैम ने बहुत ही ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है कि अगर तुम बताना चाहते हो तो बताओ। डेरी आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल। तो डेरी अपनी मन की बातें यहाँ पे शुरू करता है बताना, जो कि उसने कभी किसी को बताई नहीं थी, क्योंकि जो टॉपिक जब भी डेरी को कोई मिलता था तो टॉपिक जो है वो ओवर कंसर्न और पिटी की तरफ चला जाता था और ये जो बातें थी वो उसके माइंड में रह जाती थी। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ था कि मिस्टर लैम जो है उन्होंने इसे बोला था कि हाँ तुम बताओ। सो डेरी ने कहा कि आई डोंट लाइक बीइंग विद द पीपल, एनी पीपल। मिस्टर लैम आई शुड से, टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। ठीक है, तो किसी मिस्टर लैम से कह रहे हैं कि हाँ तुम बताओ तुम क्या हुआ था, तुम्हें बताना चाहिए, क्या तुम जल गए थे। तो डैडी ने बताया नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्नड इट ऑल अवे, इट एट माई फेस। ठीक है, तो उसने बोला कि फायर से नहीं एसिड से जला था और उसने मेरा सारा फेस खा लिया। तो एसिड अटैक्स के बारे में आप जानते हैं, ये कि यहाँ पे मैंने पिक ला रखी है सोनाली मुखर्जी की, आप भी इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में। ये एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। तो इसी तरह से आपको पता है कि एसिड अटैक की वजह से क्या क्या फेस पे हो जाता है। तो वैसे उसका जो हाफ फेस था वो बर्न हो चुका था, ठीक है, जिसकी वजह से उसे लगता था कि मैं ऐसी फिजिकल इम्पेयरमेंट के साथ लाइफ में नहीं जी सकता हूँ इस फेस के साथ। सो मिस्टर लैम उसे कहते हैं नो, नॉट इन अ फायर, उसने बता दिया दैट इट एट माई फेस, इट एट मी अप एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट। ठीक है, कि अब ये ऐसा ही है और ये ऐसा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, मिस्टर लैम नो, डेरी आरंट यू इंटरेस्टेड, मिस्टर लैम you are a boy who came into the garden, plenty do, I am interested in anybody, anything, there's nothing God made that doesn't interest me, look over there, over beside the far wall, what can you see। ठीक है, तो अभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर लैम, और उसे कह रहे हैं कि तुम गार्डन में आए हो, ठीक है, तो यही बातें नहीं हैं लोगों को जिनमें इंटरेस्ट हो तुम्हारे चेहरे में, और लोगों को और भी चीज़ों में इंटरेस्ट है। गॉड ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई है, उनको देखो। व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या दिख रहा है गार्डन में देखो। तो डेरी का जवाब होता है रबिश। ठीक है, रबिश मतलब होता है कूड़े करकट को हम कहते हैं रबिश। ठीक है, वो कह रहा है कि ये तो रबिश है सारा। देन मिस्टर लैम, रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी। तो डेरी भी जवाब देता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स। तो अब देखते हैं वीड्स एक्चुअली क्या क्या होते हैं। वीड्स एक तरह के प्लांट्स होते हैं जो इस तरह के दिखेंगे आपको, शॉर्ट प्लांट्स होते हैं जो कि आपकी मेन
क्रॉप जो होती है उसके साथ जो छोटा छोटा घास उगता है जो किसी यूज़ का नहीं होता है, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उनको हम वीड्स कहते हैं। ठीक है, सो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं सम कॉल देम वीड्स, इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन डैट, देयर्स फ्रूट, देयर्स आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स ऑल सोर्ट्स। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ सिर्फ वीड्स ही नहीं है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिनकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है, बट ओवर देयर वीड्स, और वहाँ पे वीड्स भी हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर। उसे वो कह रहे हैं कि अगर वो वीड है लेकिन वो लाइफ है उसमें, वो भी ग्रो कर रही है, तो जो ये जो प्लांट ऐसे वीड कह दिया जाता है जिसे जिसके ऊपर फ्लावर लगते हैं, ये जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको उनको हम इसेंशियल क्रॉप या क्रॉप कह देते हैं। वेयर्स द डिफरेंस, इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। ठीक है, उसने बोला कि इनमें डिफरेंस कहाँ है, दोनों एक जैसी तो हैं, दोनों में लाइफ है, जैसे मैं और तुम हो, जैसे हम में लाइफ है, हम दोनों डिफरेंट नहीं हैं बाकी दुनिया से। उनका कहने का मतलब था कि वो दोनों जो हैं वो डिफरेंट नहीं हैं। इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस दैट नथिंग इज़ वर्थलेस, और वो ये बताना चाहते हैं दैट ही लव्स एवरी क्रिएचर मेड बाय द गॉड, और उसकी वैल्यू करते हैं। ठीक है, मिस्टर लैम्ब उसे ये बताने की कोशिश कर रहे थे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। देन वी हैव नेक्स्ट, अब डैरी उसे बोलते हैं डैट, अब डैरी उसे कहते हैं वी आर नॉट द सेम, क्योंकि डैरी को अभी तक पता नहीं था उनकी फिजिकल एम्पेयरमेंट के बारे में, तो वो कह रहे हैं दैट वी आर नॉट द सेम। मिस्टर लैम्ब उसे कहते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बॉन्ड फेस एंड आई हैव गॉट अ टिन लेग। ठीक है, उसने बताया कि उनकी जो लेग है वो टिन की है। नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर, व्हाट्स वेयर द डिफरेंस। तो वो फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों, तुम खड़े हो मैं बैठे हूँ, मैं क्या डिफरेंस है, तुम में भी लाइफ है मुझ में भी लाइफ है, हम दोनों सेम हैं। अब डैरी का जो ध्यान है वो टिन लेग की तरफ जाता है, तो ये है टिन लेग की, जब लेग ना होने की वजह से जो नकली टांग लगाई जाती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है टिन लैंग। डैरी से बोलता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लैंग, क्वेश्चन पूछा उससे। दैट मिस्टर लैम रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक। ठीक है, ब्लोन ऑफ का मतलब होता है कि टांग थी वो मेरी, वो कट गई थी वॉर में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, सो Lammy lamb, some kids say, haven't you heard them? You will lammy lamb, it fits, doesn't trouble me। वो कह रहे तुमने सुना नहीं है, मुझे सारे लैमी लैम कहते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे ये सूट भी करता है वर्ड, अगर वो मुझे लैमी लैम कहते हैं, इट फिट्स। ठीक है, ट्रबल मी। तो डैरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं तुम छुपा सकते हो अपनी इस कमी को, लोग तुम्हें नहीं देखेंगे। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं सम डू सम डोंट, कि कुछ लोग देखते हैं कुछ नहीं देखते हैं, दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। ठीक है, तो उसे कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी टांग ही नहीं है इस दुनिया में, लोगों को और भी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो डैरी कहता है येस लाइक माई फेस। मिस्टर लैम्ब, अब मिस्टर लैम्ब जवाब देते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। ठीक है, तो उसे कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा फेस ही नहीं और भी चीज़ें हैं। ठीक है, और स्पाइडर सिल्कन लैडर होता है, हम ये जाले को बोलते हैं, जो जाला यहाँ पर स्पाइडर के साथ बना है ना उसको बोलते हैं। सो डैरी यहाँ कह रहा है थिंग्स, मिस्टर लैम्ब का इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस्ट। ठीक है, उसमें मतलब ये सारी चीज़ें रिलेट करती है, सब साथ में चलता है, ब्यूटी एंड बीस्ट साथ में चलते हैं। डैरी कह रहा है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, मिस्टर लैम्ब यू टेल मी। अब वो उसके विचार जानना चाहते हैं ताकि उसकी जो मन के अंदर जो बातें छुपी हैं बाहर आए। तो वो कह रहे हैं, तो डैरी कह रहा है यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट व्हाट यू आर इनसाइड, हैंडसम इज एज हैंडसम डज। वो कह रहा है कि मुझे, हाँ मुझे पता है लोग वही स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसे दिखने से कुछ नहीं होता है, अंदर से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हाँ मैंने सुनी हुई हैं ये सारी बातें। सो लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ। अब यहाँ पे अपने जो डैरी है वो बोल रहा है दैट ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। कि हाँ मैंने स्टोरी जैसे सुनी है, ओनली ही वुडंट ही हैड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर्स बीस्ट, आई वुड नॉट चेंज। वो कह रहा है कि मुझे पता है कि वो तो चेंज हो गए, लेकिन मैं आई वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर्स बीस्ट, कि मैं ऐसे ही रहूँगा। आई वुडंट, ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर बीस्ट एंड आई वुड नॉट चेंज, कि मुझ में कोई चेंज आने नहीं वाला है। मिस्टर लेमी कह रहे हैं इन डैट वे नो यू वुडंट। ठीक है, तो डैरी कह रहे हैं एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर
and she kisses me on the other side of my face, and I don't like my mother to kiss me. She doesn't does it because she has to. Why should I like that? I don't care if anybody ever kisses me. ठीक है, तो वो डैरी बता रहा है कि किस तरह से जो उसकी मदर है वो भी एक पार्शियल बिहेव करती है. ठीक है. मिस्टर लैम, हाँ, वट यू डू केयर इफ़ यू नेवर किस देम. डैरी, वॉट. Mr. Lamb, girls, pretty girls, long hairs, large eyes, people you love. तो यहाँ पे जो मिस्टर लैम्ब वो उसे बताना चाहते हैं कि अगर आज सिचुएशन ऐसी हैं तो ज़रूरी नहीं सारी दुनिया ऐसी हो सकता है लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें. जब डैरी कह रहा है हु वुड लेट मी, नॉट वन. मिस्टर लैम्ब, हु कैन टेल. तो वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई नहीं होगा जो उसकी केयर करेगा या उसके साथ अफेक्शन रखेगा. तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि हु कैन टेल, ये तुम कैसे कह सकती हो. या डैरी कह रहा है आई वुडेंट एवर लुक डिफरेंट, कि मैं कभी डिफरेंट लुक नहीं आएगी मेरी, मैं ऐसा ही रहूँगा. व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई विल लुक द सेम एंड आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस. ठीक है, तो मुझे कह रहा है कि मेरा फेस जैसा है वैसे ही रहेगा, मेरे फेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो लास्ट डायलॉग देखते हैं. मिस्टर लैम्ब, सो यू विल, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, द वर्ल्ड गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड देयर्स टू बी लुक्ड एट. तो वो कह रहे हैं कि जो दुनिया है उसके पास तो पूरा फेस है. पूरा फेस का मतलब कि हर तरह के लोग यहाँ पे हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं. तो तुम्हें ज़रूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिविटी से देखा जाए. ठीक है, इन लाइन्स का मतलब पीपल मे एक्सेप्ट एंड लव डैरी. और एक तरह से वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट यू हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग एंड द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड अभी जो है वो एक्सप्लोर करना बाकी है तुम्हारे लिए. ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 1. वी विल डिस्कस द पार्ट 2 इन आवर नेक्स्ट वीडियो.